क्यों, वजह पता है? आप वहाँ देखें, एक कमेंट्स आया था कि आप हमारी तरफ क्यों नहीं देखते। तो कहने का मतलब ये है, आप मेरी तरफ देखती हैं ना, फिर मुझे भी वो अजीब सा होता है, तो फिर देखती है आपको कमेंट्स वो करते हैं, ये कुछ मैच ना हुआ। तो वो कह रहे हैं कि हमारी तरफ भी देख के बात किया करें, कि ये अब पाकिस्तान की गली कूचों में, गैदरिंगों में ये बात होने लग गई है कि बंगालियों ने अलग होके अच्छा किया। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जा रहे हैं, खुश रहे हैं, माँ बाप का ख्याल करें। माँ बाप है तो सब कुछ है, माँ बाप नहीं तो दुनिया में कुछ भी नहीं। ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसा ही है ना? तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली। कुछ आइडिया है आपको आज की वीडियो कैसी है? नहीं, आप बताएंगी। असल में वीडियो देखी तो नहीं है ना हम दोनों ने, तो आइडिया तो नहीं है, लेकिन ये है कि ये वीडियो हमें बहुत ज़्यादा सजेस्ट की गई थी। चेन्नई मेट्रो सिस्टम। चेन्नई बहुत खूबसूरत सिटी, बहुत ही आला, बहुत ही ज़बरदस्त सिटी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वैसे मुझे मेट्रो में बहुत और चेन्नई एक सिटी अच्छा है, तो उम्मीद है कि इनका मेट्रो जो होगा वो भी बहुत अच्छा आला ही होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो का टाइटल है चेन्नई मेट्रो सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। Alright everybody, welcome back to a new video. I'm in Chennai. And of course, when you're in these big cities that provide great local transport, you got to test them out. I've been on the Delhi Metro, I've been on the Kochi Metro, and today we're heading down to the Chennai Metro. It's cool because even between the Delhi and Kochi Metro, they're so similar, but they've got just such different little features. You know, in the Delhi one you have a token, whereas in the Kochi one there was a QR code for you to scan your ticket. So it's going to be interesting to see what Chennai has to offer. Yeah, as Chris just said, very quiet, literally no one down here. I'm not sure if filming is allowed, and it's not. There's a damn there's a no camera sign. That is annoying. Ah, that's inconvenient. Alright, I'll see what happens. Alright, this is the map. We're at Chennai Central. Where do you want to go today, Christopher? And from here you can go down the green route or the blue route. Where do you want to go today, Christopher? Yeah, I think blue route. Blue route? Let's go blue route, yeah, it's pretty spaced out. We can go to the airport. We could go to the airport, yeah. Let's see where we end up. Yeah. Sweet. I think Thousand Light. Actually, We'll go a couple. yeah. So we have to give the exact stuff. So just a couple of stops maybe. Thousand Light. Yeah. It sounds cool. So we'll test it out. I'll try to get as much of it I can on footage, but you're not really allowed, so have to be sneaky about it. Just buy my own as well. I'll pay for you. I'll pay later. क्यों, वजह पता है? 1000. आप वहाँ देखें, एक कमेंट्स आया था कि आप हमारी तरफ क्यों नहीं देखते। तो कहने का मतलब ये है, आप मेरी तरफ देखती हैं ना, फिर मुझे भी वो अजीब सा होता है, तो फिर आपको वो करते हैं, ये कुछ मैच ना हुआ। तो वो कह रहे हैं कि हमारी तरफ भी देख के बात किया करें। कोई बंदा नहीं है जिसको आप जैसे आप जैसे आप ऐसे बात कोई तरीका भी बताया गया कि आप इस तरह से कर सकते Confirm. And 2 tokens, so it's similar to the Delhi Metro, where you get your tokens, and this is what they look like. There you go. Sweet. Alright, now we gotta go through security, so be secret. Where do you put this? Oh, you on top of there, yeah. Alright, just waiting for the metro. 2 minutes it says. But up here you got your stations, got your which direction it's going, so that one's going that way. And then on platform 6
you have it going the opposite way, back towards the, not towards the airport. So, we're going to Thousand Lights. It's a great system to get to the airport. It's only 50 rupees if you want to get there. And I'm sure just like the Delhi Metro, it's going to be super fast, super faster than just getting a taxi or a rickshaw there. So far, it's very modern, great system I believe. But we'll get inside in about 1 minute, it's due to come. And we'll give it a full rundown inside. It's not those doors. I knew you'd get caught on that. Alright, where are we going? Just here. Let's just go here. Alright, we're on the metro. Just like the Kochi Metro and the Delhi Metro, very modern. The Delhi one that I caught to the airport when I was there, the seats are horizontal. So you're like going facing with the train. And these ones are on the side, just like similar to the Kochi. So it's cool, as I said, like it's different, every single one that you go to. But then of course they have like similarities to each other. But we're picking up some speed fast here. This is the carriage. And it's pretty long. And you got your stops. So we'll see what happens throughout the trip. It's just like a better look at the token you got. I know the last clip was a little bit dark, but it says Chennai Rail Limited, Chennai Metro Rail Limited, and a little logo there, and then on the back, the same logo with a serial number. It's got a RFID chip as well. Yeah, on the inside. But pretty cool ride. Lots of locals catching it, you know, going to their destination, and that's what you want when you implement infrastructure like this. You want people using it, as many people as possible. But I think this is a great idea. I don't know when it was implemented. I'll do some research tonight, or I'm sure a lot of people in the comments can let me know when the Chennai Metro was built and when it first opened up. We're getting off for the next stop, so we'll catch up then. Right, reached our destination. See where the stairs up. We have no idea where we arrived. I just picked a location up. So we're gonna have to go up onto the floor and see where we've ended up. It's gonna be cool exploring a new area. But here is our first peek of where we are. Welcome to 1000 Lights. What there is to do here, I have no idea. We got a main road here. Got some locals doing their thing. You can also enter from that side, or exit from that side as well. But we'll have a little bit of an explore here, see what it has to offer, and then we'll go from there. It's called Spencer's Plaza. Alright, we walked a bit down the main road. There wasn't really much to see, but we found a big mall. So, we're gonna go inside. It's called Spencer's Plaza. You got your security measures in case. So we're gonna get a coffee here. Yeah, oh for sure. We can't leave without one. That's why we came here. To get a coffee. Kashmir. Anyways, oh Brett Lee. We're gonna get a coffee, explore this mall for a little bit, and then head back on the metro back to Chennai Central.
वो कॉफ़ी के दीवाने हो, Milk coffee. देसी लोग चाय के दीवाने हो, मुझे भी कॉफी मतलब पाकिस्तानी इंडियन कॉफ़ी We found a place after some navigating. कॉफी थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है ना चाय की ज़्यादा। Yes, yes, yes. So we got filter coffee. Saw the video I posted yesterday. That was I mean some good samosas. coffee that we had in the heart of Chennai. You also got lots of snacks that you can eat on. Some samosas. वाओ इसे दिख कर आ रहा है। Yum yum. चाय What's that? Banana cake. Banana cake. अरे तो Jam चाय bun. लग रही है। Those look interesting. Not sure what they are. पठान के कपों वाली Maybe they're sweet or sour. Not sure. ये देखें What is that? Sweet or sweet? No. कॉफी भी वो है ना 100% चाय लग रही Okay, just मुझे लगा मिल्क Biscuit, yeah, no biscuit. है तमिल लग रही है तमिल yeah, 25 rupees. Nice big size. Sure we'll get it. सफाई देखें लप्स वगैरह सफाई salt, sweet, ragi. Sweet. Sweet. It's Hyderabad. And then another biscuit? Okay, yeah. कॉफी ये ऊपर से थोड़ी सी कॉफ़ी पाउडर डाल दें। अच्छा अच्छा आपको नहीं समझा Thank you. अच्छा सेम यही कप है यार हमारे पास जो कोयटा के होटल्स हैं ज़्यादातर हमारे यहाँ चाय वाले Good. पठानों के ज़्यादातर इस तरह We get a के live reaction. That is nice. कीप द चेंज Smile. Biscuit is good as well. Yum yum. Very good. Oh, it's okay. You can. You keep the change. वन मोर ऐसी में मांगने I'll वाली keep बात it. बहुत पैसे रखिएगा Thank you. आप तो फॉर्मूला क्या देते हैं ना चेंज Okay, one more, huh? देखिए आप One more biscuit. हाथ से बिल्कुल भी It's good to dip it in गरम गरम भी है ना like that, and then. चाय के साथ बिस्किट मज़ा आ जाता है लेकिन ये कॉफ़ी है बकला Thank you very much. खोला Nandi. अच्छा बच्चे घूम रहे होंगे बड़े भी। लो भाई समय भाई Very nice coffee. Maybe different type. What did I just witness? That is never to be seen. होता है ऐसे यहाँ पे मैंने देखा है काफी कवर करने He came flying. He made दे दी जाती है fast moves all the way around, and he came back. He was going very fast. He's coming back again. But we're still at the coffee shop. कॉफ़ी हाउस Hey! Dude, they go fast. Dude, we gotta go. That goes fast. I want to go. That'd be fun. Alright, we made it back to the metro. Got our tokens, we're heading back to Central Metro, which is where the green and blue line connect back up. So it is a, I'm not sure how long the wait is. 3 minutes? How do you see the time? Ah, okay. So 3 minutes, 2 minutes. That one's going the other way, so we can't catch that. But you got to make sure that you're on the right way. So definitely, when you catch these metros, check these signs. Make sure that your stop is on the blue side because that's the direction it's heading. And just make sure you are on the correct way because, as you can see behind me, if you go on the wrong line, you're going to the wrong place. And yeah, 2 minutes. It says just there. But the first experience, it was really good. As I said, very similar to the Delhi Metro and very different to the Kochi Metro because that one was above all the roads. This one is below. Both have their positives and negatives, but it's good to have different variety. And I'm excited to try like the rest of the metros all across India. I know the oldest one is in Kolkata, I believe. There's a Mumbai Metro as well. Yes. Did you catch that one? Yes, I think. Busy? Busy, yes. But not as busy as the local.
the local freight. Yeah. आपको बहाने का मिल सकता है। But it's good. All these major cities have these perfectly running metros, which is such a great addition to India. You know, it gives extra jobs. It lets people, locals, travel across their city for a cheap, affordable price. But I believe 1 minute until it comes. I think it's on its way now. Yes, it is. So it zips past and then it slows down really fast, and you can tell when you're in there, you sort of like jolt a little bit when it suddenly stops. You'll see in a moment all that speed, and it sort of like comes to a halt. But we'll head inside. Really nice Alright, y'all finished up at the Chennai Metro. We're at the central part. Look at these awesome buildings. We entered from that side over there, and now we're on the other side of the road. But honestly, great experience. It's good to test all of them out. And in the next video. जी जनाब, क्या बात है। चेन्नई मेट्रो। आज हम कहाँ सफ़र कर रहे हैं? दिल्ली, चेन्नई। बहुत तो मज़ा आया, मुझे तो बहुत अच्छी वीडियो बहुत लगी। ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही आला सफाई, खूबसूरत, और शॉपिंग, कॉफ़ी। सबसे मेन हिस्सा आपको कॉफ़ी वाला लगा होगा। क्यों? बिस्किट वाला। तो क्यों? इतनी अच्छी ट्रेन, इतनी बड़ी ट्रेन देखी, इतनी नहीं, खूब। ट्रेन जो बात है वो बहुत अच्छी है। तो आपको जो कॉफ़ी बात है, याद है? मेट्रो मुझे बहुत पसंद आई है। हाँ। और हर तरीके से आपने देखा, नीट एंड क्लीन कितनी ज़्यादा थी, सर्विसेज इतनी अच्छी थी, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग। कहीं पे भी मैं ये नहीं कहूँगी कि यहाँ पे कसर रह गई। ये चीज़ थोड़ी मिसफिट लगी मुझे। अच्छा, वो जो होते हैं खिड़कियाँ होती हैं और उनके अंदर बंदे बैठे होते हैं, कहाँ का टिकट चाहिए। हाँ, वो फाड़। 70s के दौर वाला। ठीक है, है यही है, अभी भी है। अभी यहाँ है, लेकिन वहाँ अच्छा, पे यूँ तो फाड़ बहुत के देते advancement हैं, है। तो फाड़ के दे देते हैं टिकट, ये लो जाओ। वो अच्छा, मैंने एक जगह भी नहीं देखा अभी तक इंडिया में, जितनी भी हमने मेट्रोस देखी, दिल्ली मतलब देखी, वही मुंबई मैं- देखी, हाँ। ये चेन्नई देखी। इससे ये होता है ना कि चीटिंग की गुंजाइश नहीं होती। ठीक है। और दूसरा ये है कि हर चीज़ कैलकुलेट होती है, हर चीज़ का रिकॉर्ड रह जाता है, कौन किस शख्स ने कहाँ सफ़र किया, क्या क्या दिए। फिर आपके बंदे की कॉस्ट बच जाती है, आपका जो बंदे रखने पड़ते हैं उनकी कॉस्ट बच गई। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है, अपने जानने वालों को टिकट इशू करके दे देते हैं, दूसरे बंदे लाइन में लगे तो लगे, ऐसा भी बिल्कुल होता है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। लाइन में लगना पड़ता है और बड़ी ख्वारियाँ होती हैं, बड़ी बहुत। चीज़ें हैं। आज भी ये सिस्टम तो आज भी है हमारे यहाँ, लेकिन और यहाँ पे मैंने कहीं पे लोकल भी नहीं ट्रेन देखा। में भी इंडिया में होगा। ये तो चलो मेट्रो सिस्टम है, तो मेट्रो तो ये सिस्टम एक अलग है। और ये एक अपर क्लास के जो लोग होते हैं वो यूज़ करते हैं, लेकिन इंडिया में मेरे ख्याल में मिडिल क्लास के नहीं, जो मैंने लोग, देखा था मिडिल क्लास लोग भी थे, ऐसा नहीं, तो नहीं, नहीं। बहुत ही ये तो नहीं है कि मिडिल क्लास में मैं बिल्कुल एक नीचे तबके की बात कर रहा हूँ कि उन लोगों के लिए अभी भी वो लोकल जो ट्रेनें होती हैं तो वहाँ पे ये चीज़ें होंगी कुछ एरियाज़ में, लेकिन 80% तरक्की हो चुकी है। 70-80% मतलब इतनी डेवलपमेंट हो चुकी है कि आप। अच्छा, डेवलपमेंट तो डेवलपमेंट, एडवांसमेंट आप देख रहे हैं, किसी भी चीज़ में पीछे नहीं है। ऐसा ही हर है। चीज़ जैसे फॉरेनर्स यूज़ करें, दूसरे अब्रॉड कंट्रीज यूज़ करें, जिस तरीके का सिस्टम, जैसे आपने देखा वो बिल्कुल वही है। टिकट कैसे इशू हुआ था। हाँ हाँ, तो ये मतलब इसको इसी को तो तरक्की कहेंगे। बिल्कुल। और कोई मतलब है कि सफाई का भी ख्याल है। अच्छा, जैसे वो इंटर हुए तो अनाउंसमेंट उनको होने लग गई, गाइड स्पीकर से आवाज़ आने लग गई कि कहाँ से टर्न करना है, कहाँ गाइड करना है। यानी सेंसर्स होते हैं जो आपको उनको पता चल जाता है कि अब वो जो रिकॉर्डिंग वॉइस है, अब वहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है, वो हमेशा एक बंदा जो है वो आपको गाइड करे, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ। तो आपकी कॉस्ट है ना, ये एक बंदा रखना आपकी कॉस्ट है। आपने एक रिकॉर्डिंग रख ली, सेंसर लगा दे। देखो टेक्नोलॉजी इतनी आम हो चुकी है। अच्छा, मैं आपको एक हैरत अंगेज़ बात बताऊँ, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, इतनी कॉमन हो चुकी है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में घरों में बैठे हुए बंदे ऐसी ऐसी चीज़ें बना रहे हैं कि जो मतलब आप हैरान हो जाओ। मिसाल के तौर पे आप गाड़ी में बैठे हो, घर का बल्ब बंद कर दो, आप अपने मोबाइल से अपने घर का लॉक खोल लो। बिल्कुल, ठीक है। मतलब बहुत सी चीज़ें आम लोगों को पता चल चुकी हैं, लेकिन हमारे यहाँ अपर लेवल पे गवर्नमेंट सतह पर कहीं है ही नहीं चीज़ें। मतलब उनको यूटिलाइज़ किया जाए, उनको वही 100 साल पुरानी चीज़ें, अंग्रेज़ों के दौर की बनी हुई पटरियाँ, उसमें अल्लाह माफ़ करे पिछले दिनों आपने देखा कितने हादसे हुए, दो हादसे हुए। एक तो बच गया, एक तो पटरी से ट्रेन उतर गई, बच गया, और एक में काफ़ी लोग जहाँ बाग हुए। काफ़ी मतलब कमेंट्स भी 1-2 आए थे इनके ऐसे ही कि ट्रेन का हादसा हुआ।
तो लेकिन ये है कि इतनी तरक्की हो चुकी है तो मतलब आवाम एक चीज़ बना सकती है, एक घर में गांव में बैठा हुआ बंदा बना रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं, होता क्या है, होता ये है कि ऐसा नहीं कि सबके सब एक जैसे हैं। कोई एक इंसान भी आगे बढ़ने की कोशिश, यानी कि किसी चीज़ पे आवाज़ उठाता है ना, तो 4 लोग उसको दबा देते हैं, उसका पत्ता कटवा देते हैं। हमारा जो सिस्टम है ना, वो ऐसा है कि बस घिसा पिटा चल रहा है। अब उससे हटके कोई ट्रैक से हटके काम करता है ना, तो लोगों को वो हजम नहीं होता। आपको ऐसा पता होता है है। पाकिस्तान में एक ऐसा शख्स भी था जिसने पानी से जलने वाली कार बना ली थी। बताएं। सुना था, वीडियोस वगैरह देखी हाँ, मैंने थी। सुना है। आज वो शख्स अभी नहीं, थोड़े दिन पहले सुना आज वो था। शख्स गायब है। बताएं। क्यों, वजह पता है? आप वहाँ देखें, एक कमेंट्स आया था कि आप हमारी तरफ क्यों नहीं देखते। तो कहने का मतलब ये है, आप मेरी तरफ देखती हैं ना, फिर मुझे भी वो अजीब सा होता है, तो फिर देखती है आपको कमेंट्स वो करते हैं, ये कुछ मैच ना हुआ। तो वो कह रहे हैं कि हमारी तरफ भी देख के बात किया करें। ये अब आज से मैं आपको नहीं देखूंगी, सही है ना, आपका ही नुकसान है। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि एक शख्स ने पानी से चलने वाली कार बना ली थी। अब कितना ऑड लगेगा मैं ऐसे करूँ, आप यहाँ बात कर। नहीं, थोड़ा थोड़ा यूं करती रहे। तो गर्दन में दर्द हो। नहीं, थोड़ा थोड़ा, इतनी तेज़ी से भी नहीं। तो बहुत सारे हाँ, मैंने थोड़े दिनों पहले जो बातें ये सुना था, ऐसा थोड़े दिनों सुना नहीं, था। सालों पहले पुरानी हाँ, बात। हाँ, अच्छा, वही। इसके अलावा भी कई लोग ऐसे हैं। अच्छा, एक शख्स ने एक चीज़ बनाई, हेड। वो हेड पहन के जो नाबीना लोग हैं, ब्लाइंड लोग हैं, उनको बाकायदा दिमाग में सेंसर महसूस हो जाएगा कि आगे कोई चीज़ है। यानी कि स्टिक होती है तो स्टिक टच करके वो महसूस करते हैं ना, यहाँ ये है तो यूँ टर्न कर जाते हैं, तो यहाँ यूँ है। तो वो हेड है ना, हेड पे सेंसर लगे हुए हैं। आगे दीवार आ रही तो आपको सेंसर बता देगा कि दीवार है। तो यानी कि यूनिवर्सिटी के लेवल पे और भी बहुत सारी चीज़ें जो इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रही, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, तो पबजी में एनिमी बता देगा क्या एनिमी है? हाँ। सेंसर। मेरा फ़ायदा हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ आम लोग भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, लेकिन ऐसा कोई शख्स अगर कोई चीज़ ईजाद भी करता है तो उससे दबा दिया जाता है। उसकी वजह क्या है, आप बताएं। अच्छा, उससे दुश्मनी क्या, आप मुझे बताएं थोड़ा सा, फिर मैं आपको समझाऊँ। उनका नुकसान होगा क्या? जैसे कि अगर पानी से हाँ। वो गाड़ियाँ चलने लगे, किसका नुकसान है? किसका नुकसान है? पेट्रोल तो बंद, बिल्कुल ठप। पेट्रोल बंद, डीजल। तो उसका मतलब ये है कि हमारी फिर वो कमाएंगे कैसे? Exactly. मेन चीज़ ये है कि उनका जो खांचा, उनका जो बत्ता या उनकी जो सेटिंग है, कंपनीज जो बड़ी बड़ी हैं वो चीज़ों को दबा देती हैं। बाकायदा आज वो बंदा ही गायब है। अच्छा, ये जो कंपनीज, ये है ना, इनको भी अगर हम माफिया कहें ना, ये माफिया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई भी शक नहीं कि वाकई ये माफिया हैं। ये अपने काम के लिए, अपने मतलब के लिए आवाम का फ़ायदा नहीं देखते। मार भी सकते हैं। आप कह रहे हैं ना वो गायब हो गया होगा, वाकई वो गायब हो गया होगा, आज उसका पता नहीं है। अच्छा, एक शख्स ने कुछ ही दिनों पहले मैंने वीडियो देखी, मोटरसाइकिल का इंजन निकाल कर गाड़ी बना ली, प्रॉपर गाड़ी। और किसने? मैकेनिक ने, लोहार ने कार बना ली। वो फैमिली को बिठा के घुमा, सारी चीज़ें कार बना ली। और वो कहता है कि मेहरान लेवल की कार 7-8 लाख की मेहरान मिलती है। पाकिस्तान में जो मेहरान चलती है डब्बा, सिर्फ और सिर्फ मिली भगत से उसकी कीमत ये है। उस लेवल की कार, 800 सीसी कार मैं 1.5 लाख में बना सकता हूँ। इतना टैलेंटेड बंदा। अभी वो urdu.point में उसकी वीडियोस आई है। लेकिन क्यों उसको आगे नहीं बढ़ने देंगे? क्यों लाइसेंस नहीं देंगे? आपको इजाज़त कैसे मिल गई कार बनाने की? वो कार भी वो रोड पे नहीं ला सकता। वो तो गाँव में चला रहा है, वो रोड पे थोड़ी ला सकता है। नंबर प्लेट कहाँ है? आप कार कैसे चला रहे हो? इसकी लीगल थोड़ी है कार ये। तो कहना ये चाह रहे हैं कि इनकरेज की जगह डिस्करेज करते हैं। अच्छा, एक कंपनी जो होती है वो हज़ारों, लाखों, सैकड़ों गाड़ियाँ बनाती है, तो उनको कॉस्ट कम आती होगी। बिल्कुल। एक शख्स अकेली गाड़ी बना रहा है, कहता मैं 1.5 लाख में बना सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि गाड़ी की कॉस्ट क्या होगी पाकिस्तान में? कॉस्ट और कीमत कुछ भी नहीं है। ये सारा ऊपर लेवल पे टैक्सेस मार दिया जाता है, मार देता है इंसान को। हमारे यहाँ वाकई कार बहुत बड़ी बात हो गई है। बिल्कुल, इसी वजह से वो शख्स कह रहा है मैं 800 सीसी कार आपको 1.5 लाख में बना के दे सकता हूँ। 1.5 लाख रुपए में 800 सीसी, और कह रहा है उससे अच्छी 800 सीसी मेहरान से अच्छी। लेकिन मुझे अगर प्रॉपर परमिशन दी जाए, मुझे अलॉट किए जाए नंबर प्लेट्स, मुझे दिए जाए इजाज़त, तो मैं आपको बना के दे सकता हूँ। और कितने दिनों में? 15 दिन में। यकीन करेंगे, ऐसे टैलेंटेड लोग पड़े हुए हैं, ऐसे टैलेंटेड। आप 1.5 लाख की बात करें, 1 लाख कुछ की तो मेरे भाई ने सिर्फ बाइक ली है अभी, है ना। और इसने जो ये कार बनाई थी ना, मोबाइल बाइक के इंजन से, ये टोटल कितने में बनाई इसने? कितने में? जो आसपास इसके लोहार के और मैकेनिक के पास कार्ड का बाट था ना, लोहा, 40,000 रुपये में। 40,000 40,000 रुपये में कार बना ली बाइक के इंजन लगा के।
तो कहने का मतलब है टैलेंटेड Talented लोग लोग हैं, अगर गवर्नमेंट थोड़ा सपोर्ट सा करे support करे। तो बहुत कुछ हो सकता है। और गवर्नमेंट अगर ये सोचे कि आवाम को फ़ायदा हो, हम पाकिस्तान भी आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल, अगर इनका अपना कमीशन और कट ख़त्म हो जाए। बिल्कुल। एक शख्स ने पता है क्या कहा है, मतलब मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, अगर पाकिस्तानी कौम हम लोग ईमानदारी से चलें, बिल्कुल। अपना काम ईमानदारी से करें, पाकिस्तान तरक्की करेगा। यहाँ पे चोर बहुत हैं। जिस शख्स को जहाँ पे हर इंसान बेईमान है। जिस शख्स को, दूध वाले को, जिस शख्स को जहाँ मौका मिलता है वो चोरी कर रहा वो उसको, है, हाँ। अपने आप अपने काम में डंडी मार रहा है। मारा। और एक शख्स है, पता है वो किसकी तारीफ़ कर रहे थे, मतलब दोस्तों के साथ जो बैठे होते हैं तो ये बात हो रही थी, तो यही आवाम के ऊपर बात हो रही थी कि आवाम चोर हैं, मतलब बेईमानी करते हैं। तो किस शख्स पे बात हो रही थी, किस कौम के बारे में कहा गया कि यार वो कौम जो है वो बहुत मेहनती कौम है? इंडिया। बांग्लादेश। अच्छा। बोला गया कि बंगाली जो हैं, बांग्लादेश वाले लोग इतने मेहनती हैं और सादा ज़िंदगी गुजारते हैं। अच्छा। लग्जरी लाइफ नहीं गुजारते। हमसे आगे हैं वो। हमसे उनकी आगे currency हमसे हैं। बड़ी है। कितनी तो- मतलब डूब के मर जाना चाहिए। तो मैं आप लोगों को ये बात हमसे अलग बताता होकर वो चलूँ, हमसे आगे हैं। मैं आप लोगों को ये बात बताता चलूँ कि ये अब पाकिस्तान की गली कूचों में, गैदरिंगों में ये बात होने लग गई है बिल्कुल। कि बंगालियों ने अलग होके अच्छा किया, आज वो हमसे तरक्की कर गए हैं। कर रहे हैं। तो दोस्तों, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।